देखिए, amazon प्राइम की रिसेंटली रिलीज्ड सीरीज राख मेरे हिसाब से अभी तक की वन ऑफ द मोस्ट इमोशनली कथार्टिक और स्टरिंग सीरीज रही है। मतलब ये ऐसी है ना कि खत्म होने के बाद भी आपके जहन में रहती है। और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे खास मेहमान है वो यंग टैलेंट जिन्होंने के साहिल अरोड़ा का रोल प्ले किया है, और क्या बखूबी रोल प्ले किया है। सो ढेर सारी बातें करेंगे हम विवान शर्मा से। लेकिन सबसे पहले विवान, वार्म वेलकम टू यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। Thank you so much. Thank you so much for having me. और यार मैं एक बार पहले तो एज एन ऑडियंस ताली बजा दूं तुम्हारे लिए, बिकॉज मतलब मैं अभी आई एम लुकिंग एट यू, और जो कैरेक्टर देखा, जो बच्चा प्ले करते हुए देखा, दे आर टू डिफरेंट पीपल। मतलब बट यू प्लेड इट एंड बहुत कमाल का प्ले किया है, सो कंग्रेचुलेशंस। Thank you so much. अब मुझे ये बताओ कि मेरे अलावा और किस किस तरह की कैसी कैसी तारीफ हो रही है, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। नहीं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है. People are going crazy. All of my you know shots are going viral on the internet, and my mom always shows me these messages that are coming on Instagram. Ki mothers are messaging from Canada, from Australia, from London, and even from India as well, that they see their son in me, and sisters are messaging ki you are the ideal chota bhai that everyone should have. So response is quite good. राइट, एंड हाउ आर यू फीलिंग, क्योंकि एक इतनी अच्छी सीरीज में तुमने रोल प्ले किया है, इंटेंस सीरीज है, इंटेंस कैरेक्टर करने का मौका मिला। हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? I'm just grateful that I got this opportunity. Thanks to God, thanks to my parents, and I'm feeling really great. और यार And मुझे एक बात बताओ, यंग एज में ऐसी अचीवमेंट के, मतलब इतने अच्छे बैनर के अंडर काम कर रहे हो, इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ काम कर रहे हो, एक अच्छी सीरीज का हिस्सा बने हो तुम। सो फर्स्टली टेल मी, हाउ डिड दिस हैपन? ये प्रोजेक्ट कैसे आया? so I keep on giving auditions. I've given approx 500 to 600 plus auditions, and I've done projects before as well. But this project had something that me and my mom hoped कि नहीं, ये कुछ अलग है. Even though जो audition scene आया था, that was the sister brother banter जिसमें वो झुमके नहीं मिल रहे और हाँ हाँ। सारी मस्ती से हाइट हंट पैगी वाला सीन चल रहा. तो um, me, my mom, and my dad, we discussed this scene a lot, and then we made the self test and we sent it to the coordinator, the casting coordinator, and then 2 months, no news. So I thought, ki, this is done for. Ki, let's move on and like, chodo. But my exams were going on, and अचानक से एक दिन मैसेज आता है कि you have to make a retest to the top shortlist for this project. So everyone was happy, and then we made the retest according to the brief, the instructions that were given, and then the directors and the writers liked it, so I got selected. राइट, सो कंग्रेचुलेशन फॉर दैट। बट यार मतलब एक तो होता है ना, बच्चे जिन सीरीज में काम करते हैं थोड़ी सी लाइट हार्टेड सी हो सकती है, फन लविंग सी हो सकती है। ये जो तुमने काम किया है, एक तो रियल लाइफ एक बहुत ही ग्रूसम इंसिडेंट पे बेस्ड है, और दूसरा इस तरह का कैरेक्टर ऑब्वियसली तुमने एज द मेन लीड प्ले किया इस यंग एज में। तो वो मैच्योरिटी जो है जो तुम अपने रोल में लेके आए हो, एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि यार विवान इज अ यंग एक्टर जो इस तरह का एक इंटेंस रोल प्ले कर रहा है, तो मुझे थोड़ी सी प्रिपरेशन के बारे में जानना है। तो मेरे एग्जाम्स जैसे ही खत्म हुए, got the script and I read it. It was fabulous. I only had my sides, but I could figure out कि पूरी story revolves around these two characters. And before that, I was not aware of the case, the Ranga Bilda 1972, the original case. But my dad told me about it, and I felt it, and then I was like, if I'm playing the character of someone who has won the Kirti Chakra, who has fought with bravery, है ना, उसका नाम he's used for giving awards to brave children like that till now and forever. So it was like a responsibility that I had on my shoulders, और था कि बस उसे justice देनी है इस role को. So I started preparing like the emotional scenes first, because the sister brother banter was something that I could do. Even after meeting my Didi, someone who plays Divya, uh, Divya who plays दिव्या Divya. हु प्लेस सुमन। Divya Didi, she's a really kind soul, and she made it really easy for me because I don't have any brothers or sisters, real brothers sisters. But in that 1 minute that we met, we introduced ourselves like Sahil and Suman, and it was just magic. Now,
So for preparing, I grabbed the soul of Sahil. I understood what Suman meant to him, even though he kept teasing her. She was, she meant everything to him, and his life depended on her. So I I practiced crying. I practiced screaming, controlled screams and crying to show the pain. And I watched videos of boxing since Sahil it's not clearly shown in the web series, but there's subtle hints given that Sahil was a kickboxer. He enjoyed boxing. So I had training for that as well. I didn't go anywhere to learn. I've not learned acting as well from anywhere in my entire career. Only auditions and YouTube videos, and even for the boxing, the punches that you've seen was just the action director who told me, and it was just some of the videos that I watched of MMA fighters and kickboxers. So Mm-hmm. that's how I prepared myself. And then we had workshops as well, two workshops, one with Sonali Bindra ma'am and one with Divya Didi. And both were incredibly great. I got to connect with them and we made a great family altogether. हाँ, वो बहुत ही बिलीवेबल सी अच्छी सी प्यारी सी फैमिली तुम सबकी लग रही है वो। बट यार, टेल मी अबाउट सोनाली मैम के साथ काम करने का एक्सपीरियंस। मतलब तुम, यू आर सो यंग, मैं ये भी नहीं कह सकती तुमने बचपन में उनको देखा होगा बट शी इज अ नेम जो इंडस्ट्री में जाना जाता है, तो उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करना उनके बेटे के तरह, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? Like it's an honor to even, be in a project with her and sharing screen with her. It's just surreal, but at the same time, I had to forget that she was Sonali Vendra ma'am on the set. I had to, feel that she's my mother. And she made that easy for me as well because I was trying my best. I called her by the name I called my mom as well, Ammu, if you've heard in the हाँ series. हाँ, यस यस। And she she told me so because she thought that this will, make her, you know, she that's my son standing right in front of me. And that even made it quite, emotional for me as well when I called her Ammu and stuff. So it was great to share screen with her. She's a fabulous actor, as everyone knows. I've seen her a lot in movies, but working with her was a totally different experience. I expected that she would be quiet and, probably someone with attitude, but she was really sweet, really grounded, and it was a lovely experience. राइट। अच्छा विवान, जैसे तुमने कहा कि कोई तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं है एक्टिंग की, बट जिस तरह से तुम बातें कर रहे हो, जिस तरह से रोल प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहे हो, इट लुक्स लाइक अ ट्रेन्ड सीजन्ड एक्टर। तो मुझे थोड़ा बताओ अपने बारे में। एक्टिंग का ये जो कीड़ा है बहुत ही यंग एज में काट चुका है तुमको, बहुत पहले से काम कर रहे हो। कैसे ये पूरी जर्नी शुरू हुई और अपने आप को इस लेवल तक एक मजे में कलाकार की तरह बात कर रहे हो? सो हाउ डिड यू ब्रिंग योरसेल्फ टू दैट लेवल? Thank you for the compliment. And I've been acting since 4 years. तो हम्म। मुझे जब शुरू में कीड़ा काटा, वो था मैं स्कूल में ड्रामा बहुत करता हूँ। अच्छा। तो एक क्लब था, उसको ज्वाइन किया था मैंने। और बाकी नॉर्मल जो असेंबलीज होती है या एनुअल फंक्शन होता है, उसमें भी काफी अच्छा रोल करता था मैं हमेशा से। एंड आई फेल इन लव विद इट। देन आई थॉट कि इसे तो प्रोफेशन की तरह करना ही चाहिए। हाउ डिफरेंट विल इट बी इफ आई कैन एस एट दिस, आई कैन एस एट दैट एज वेल। बट इट्स वेरी डिफरेंट। द थिंग्स दैट वी एक्सपेक्ट कि कितना एनिमेटेड आप कर सकते हो किसी चीज को, वो भी तो नहीं करना। जो सीखा था, जो सब किया था स्कूल में, दैट वाज टोटली डिफरेंट, और जो यहाँ करना दैट्स टोटली डिफरेंट। वहां का किया हुआ यहाँ काम नहीं आ रहा, यहाँ का किया हुआ वहां का भी काम नहीं आएगा। तो that's what appealed me, that was attracted me, and I fell in love with this profession. And the deeper I'm going into this, I realize कि this is such a deep, such a vast topic. और अभी कितना कितना कुछ बाकी है। हम्म। The- An entire lifetime is, just like an year exploring this entire thing. राइट And राइट। the thing about maturity, my mom prepared me for this. She said कि people are not going to be kind to you. You're not a kid anymore if you're going to this profession. Even though you're the child actor, you have to be mature. And although I didn't kill my innocence, I am still like other children. I play, I have fun, but I talk wisely now. And I understand कि दुनियादारी क्या होती है and how to be safe. या राइट। लेकिन यार, हमारी जो कंट्री है ना, वहां पे पेरेंट्स जो है ज्यादा
प्रेशर डालते हैं पढ़ाई पर कि अपनी पहले पढ़ाई पूरी कर लो फिर बाकी की चीजें करना, और एक्टिंग को अब धीरे धीरे करियर की तरह सीरियसली लिया जाता है, बट स्टिल इन लार्जर फैमिलीज ये कहते हैं कि जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर प्रोफेशंस हैं उनकी तरफ जाओ। तो पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट रहा जब तुमने उनको बताया होगा कि मैं एक्टिंग को प्रोफेशनली परस्यू करना चाहता हूँ, बिकॉज अभी यूर स्टिल अ किड स्टूडेंट हो। तो मुझे वो जानना है पेरेंट्स का फर्स्ट रिएक्शन क्या था। So they were very supportive. They were really happy that I'm pursuing something so great because मेरे पेरेंट्स को शुरू से ही फील्स एक्टिंग सिंगिंग डांसिंग मैं तीनों ही अच्छा करता हूँ। एंड देवर मेरी मम्मा तो शुरू से ही जब से छोटी थी तब से ही वो रेडियो वाले जमाने से गाने चला के डांस करना दैट वाज द थिंग। एंड माय डैड टू यूज्ड टू सिंग सॉन्ग्स एंड गो विद द फ्लो, तो दे वर रियली हैप्पी ऑल्दो दे नेवर फोर्स्ड मी, बट हम्म। बहुत खुश थे वो। और एक होता है ना कुछ कुछ तो सोचते ही होंगे पेरेंट्स की हाँ बने तो ऐसा कुछ बने। हाँ। तो आई थिंक उन्हें भी शायद लगा होगा कि इसे ये चीज पसंद है, कैन ही डू इट। और eventually I, so their first reaction was really mesmerizing. They were mesmerizing. They were like really happy for me. But now it's like on a serious note because it's not just about that मेरा बेटा ये काम कर रहा है। It's about कि हाँ इस मेरे बेटे को अब इससे नीचे नहीं जाना, अब इससे ऊपर ही जाना है। मैं उसकी कैसे मदद कर सकता हूँ, कैसे मदद कर सकती हूँ, that's what they think, my mom and dad। और that's why I think like that, and I keep on improving myself because, like I said, a lifetime is too short for that। करेक्ट करेक्ट, बट ये इंडस्ट्री भी ऐसी है ना जहाँ पे कॉन्स्टेंटली अपने आप को इवॉल्व करते रखना चाहिए, ताकि ऑडियंस के बीच में अपनी रिलेटिवली बनाओ। पर यार तुम यू स्टिल अ स्टूडेंट राइट, मतलब तो कैसे कोप अप कर रहे हो, ये जो एक इंस्टेंट स्टारडम मिल जाती है, और ये भी एक फैक्ट है कि पढ़ाई भी करनी है, नंबर भी अच्छे लाने हैं क्योंकि वो भी एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स की है, तो बैलेंस कैसे करते So, by God's grace, I have a good brain. I am one of the top students of my school as well. And balancing that is hard, but with हो? time management, I think everything is possible. To, for example, you don't shoot, there's nothing you have to do. You're waiting for your rehearsal to happen. You have 1 2 hours. You can, study anything and everything. You can do writing tasks. And obviously, if you're in a hotel and you're doing nothing, if all of your preparation is done, if you've eaten your food, then obviously you can, start studying. I also play the guitar, drums, and piano. So whenever I have time, except studying and acting, I pursue that. So that's how I manage time. राइट राइट, और लेकिन मैं स्कूल में जानना चाहती हूँ, थोड़ी वैल्यू बढ़ गई अभी फ्रेंड्स के बीच में, टीचर्स थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देते हैं, जो होमवर्क नहीं किया कोई बात नहीं, ऐसा होता है या डांट पड़ती है? मैं शुरू से अपना काम कंप्लीट ही रखता हूँ, बहुत अच्छा। बहुत रेयर होता है। इट्स ओनली हैपेंड वन टाइम कि मैंने जब नहीं किया वो काम मेरा कंप्लीट, और वो था जब मैंने एक बार स्कूल स्किप कर दिया था, है ना, बिकॉज आई वाज सिक। हालांकि आई गो टू स्कूल इवन व्हेन आई एम सिक, आई लव स्कूल दैट मच, बट वो उस ओकेजन पे मैं काम नहीं कर पाया था। बट टीचर्स ने मुझे डांटा नहीं बिकॉज दे नो कि मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ और फिर भी मैं मेरा काम कंप्लीट करता हूँ। सो दे रियली सपोर्टिव, माय स्कूल इज सपोर्टिव। एंड स्कूल में वैल्यू तो अब पता लगेगा, 29 को स्कूल खोल रहे हैं क्योंकि 12 जून को ही रिलीज हुई रात ड्यूरिंग द समर वेकेशन वाला पीरियड। और राइट। देखिए काफी बच्चों ने देखी है मेरे स्कूलमेट्स ने, क्लासमेट्स ने, and I'm getting a lot of messages from my school, from people I don't know, from people I know, and even my teachers, first through ninth, they're really happy, really appreciative. तो आई थिंक वैल्यू तो बढ़ेगी अब थोड़ी तो। है ना? काम इतना अच्छा किया तो वैल्यू भी बढ़ेगी और फ्रेंड्स बन जाएंगे। ठीक है, दैट्स रियली गुड यार, बट मुझे ये बताओ कि एज यू सेड ऑफ कोर्स वेरी राइटली कि अभी तो एक लंबी जर्नी है तुम्हारे लिए इस इंडस्ट्री में, लाइफ में, बट किस तरह के कैरेक्टर्स हैं जो तुमको बहुत पसंद है कि तुम चाहो कि मुझे ये मिले, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ कैरेक्टर विच इज कॉम्प्लिकेटेड इज माय फेवरेट। मतलब एक लेयर होती है हर कैरेक्टर की दैट? दैट यू हैव टू एक्सप्लोर, बट साथ में जैसे उसकी 3 4 लेयर्स हैं। वो नॉटी भी है बट वो सिंसियर भी है। ही हेट्स हिज सिस्टर बट ही लव्स हिज सिस्टर। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट होता है ना, इसको करने में बड़ा मजा आता है। तो आई थिंक ये जो ट्रेट होती है ये हीरोज में कम और विलेन्स में ज्यादा होती है। तो मैं चाहता हूँ मैं एक विलेन भी प्ले करूँ, बट
I think I'll do justice to such a role. Um, हाँ. but whatever role it is, hero, villain, um, I just want a nice character with a great heart, a great soul, या फिर a very bad heart and a very bad soul. So बट ये भी you know, याद रखना complete विवान, जैसे opposites. अभी अभी कहा था ना कि बहुत सारी सिस्टर्स मैसेज कर रही हैं दैट एवरीबडी शुड हैव अ ब्रदर लाइक यू, तो याद रखना फिर एंटागनिस्ट या नेगेटिव रोल प्ले करोगे तो फिर वैसे वाले मैसेजेस भी आएंगे. But उसी में जीत है ना कि अगर if people are hating you for playing such a character, तो इसका मतलब आपने अपना पोर्ट्रेल इतना स्ट्रॉन्ग किया है कि मतलब फॉर एग्जांपल जो क्रिमिनल्स का रोल प्ले किया है सीरीज में, हाँ हाँ. मतलब लोग तो डेथ थ्रेट दे दे, इतना खतरनाक काम किया उन्होंने. करेक्ट. हाँ. But that's their win because they've justified their roles. So, राइट. राइट. सो कमिंग बैक टू द सीरीज यार, इंटेंस रोल है, इंटेंस सीरीज है. कोई फेवरेट मोमेंट है जो बड़ा अच्छा लगा हो, या ऐसा कुछ जो हमें सीरीज में देखने को नहीं मिला बट हुआ था एंड यू वुड लाइक टू शेयर? there's only one deleted scene that I have. It was कि घर से तो निकल जाता है, but then they take the lift from a पाजी, बग्गा पाजी on the हाँ. scooter. वो भी सीन था कि वो कैसे करते हैं. उसमें बहुत कॉमेडी की थी, प्लीज 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 करके. तो उस सीन में काफी उस क्योंकि उसी सीन से एक चीज एस्टेब्लिश भी होनी थी कि साहिल लव क्रिकेट. हाँ. अच्छा. बहुत अच्छा लगता था. तो वो अम्ब्रेला के साथ प्ले कर रहा है, हालांकि उसका एक छोटा शॉट है. And in the background when someone is saying कि है ना mama please bless me and I have to go to the radio station and sing beautiful song, तो तब this it's shown, but वो सीन होता तो और भी मजा आता. But what if they've cut it so beautifully ना कि उसकी कमी महसूस नहीं होती. हम्म. पहले तो लगा कि यार वो सीन नहीं रखा, बट देन जिस तरीके से स्टोरी फ्लोज, तो उसमें वो रिक्वायर्ड एज सच नहीं था. तो इट वाज अ गुड कॉल टू रिमूव दैट एज वेल. बट that was a scene that I really liked, and of course I like the धरती को पलट देने वाली चाल. हाँ, बड़ा अच्छा था, अच्छे से किया भी वो. हाँ, this was my father's idea. He said कि this thing है ना is really 1978ish because it hit because सबके actors like Rajesh Khanna they used to do this. हाँ. So I saw his video and then I tried copying him. अच्छा है वो, अच्छा है. वही छोटी छोटी जो नुआंसेस पकड़े हैं ना, वो बड़ा एक अच्छा सा इंप्रेशन. ऑल्दो इंटेंस सीरीज है, दिल को थोड़ा सा हैवी कर देती है, बट ये जो ब्रदर सिस्टर वाला बैंटर है, छोटी छोटी चीजें जो तुम कर जाते हो, वो एक हल्की सी स्माइल भी ले आती है. सो कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन विवान. एंड आई रियली होप के बहुत अच्छा करियर तुम्हारा जाए, अमेजिंग काम तुम करो, चाहे हीरो बनो चाहे विलन बनो, हमें अच्छे से एंटरटेन करते रहो. एंड ऑफ कोर्स आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करो. सो विशिंग यू ग्रेट लक इन योर लाइफ एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी. Thank you. The pleasure was all mine.